ویلکم بیک بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کراچی سے۔ کراچی میں رکشے کے ذریعے منشیات سپلائی کی کوشش ناکام۔ شاہ لطیف پولیس نے خفیہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی سے متعلق۔ بالکل دیکھیں خالد، یہ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس ہے جس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے پشاور سے کراچی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ کارروائی کے دوران رکشے میں چھپائی گئی 24 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے SSP منیر عبدالخالق پیرزادہ کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں عظمت خان، اختر منیر اور عمران گل شامل ہیں۔ SHO شاہ لطیف ٹاؤن ممتاز مروت نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروش کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے چھاپہ مارا اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان برآمد شدہ چرس رکشے کے ذریعے کراچی کے علاقوں میں سپلائی اور فروخت کرنے جا رہے تھے۔ لاکھوں مالیت کی جو منشیات اس کو رکشے کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپایا گیا تھا تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر سے بچا جا سکے، اور پولیس نے کارروائی کے دوران موبائل فون اور کیش بھی برآمد کر لیا ہے، جبکہ منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والا رکشہ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ چرس پشاور سے کراچی لائی جاتی ہے، اس کے بعد رکشے کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں سرگرم منشیات فروشوں کو سپلائی کی جاتی ہے، اور ملزمان کراچی کی منشیات مختلف علاقوں میں ترسیل کرتے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی نذیر، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے کی دستاویز تیار ہیں۔ تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے تک ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ عرب ممالک کے رہنماؤں اور نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ میری طرف سے نائب صدر JD وینس یورپ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ امریکی صدر کا اہم بیان، ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے کی دستاویز تیار ہیں۔ تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے تک ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ایران کے خلاف طے شدہ حملے اور بمباری منسوخ کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر کے مطابق فیصلہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایران کی ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مجوزہ معاہدہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہو جاتا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ معاہدے کے تمام حتمی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور تمام متعلقہ فریقوں نے ان کی منظوری دے دی۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ قطر، ترکی، پاکستان، بحرین، کویت اور اردن اور مصر بھی معاہدے کے نکات سے متفق ہیں۔ معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تاریخ اور مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی مفاہمتی معاہدے کی منظوری نہیں دی۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی ابتدائی معاہدے کے متن کی منظوری نہیں دی گئی۔ فارس نیوز نے ایران کی مذاکراتی ٹیم کا موقف جاری کر دیا، جس میں امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی منظوری سے متعلق خبروں کی تردید کی گئی۔ ایران سے تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو ٹیلی فونک انٹرویو۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی حکام ہتھیار ڈالنے کے لیے سفید جھنڈا لہرا سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں امریکہ بڑی طاقت ہے، ہم ہار مانتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی جھوٹا میڈیا یہی کہے گا کہ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ ہم انہیں مار رہے ہیں، ان کی بحریہ بچی ہے نہ فضائیہ، دفاعی نظام بھی دفع ہو چکا۔ امریکی طیارے تہران کی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ایران کے پاس 20% سے بھی کم میزائل رہ گئے۔ ان کے حملے انتہائی معمولی ہیں، وہ ختم ہو چکے۔ The greatest deal in history. They could wave the white flag of surrender. They could say, we surrender. The United States is the greatest power. They could say it loud and clear, and the fake news would say it was a great victory for Iran. I mean, it's the craziest thing I've ever seen. We're killing them. It's killing them. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. You know, we're flying planes over the middle of Tehran, and they have no idea what with it. We've knocked out all of their radar, all of their
aircraft. Much of their missiles, they have probably less than 20%. Their attacks are very minor. They're finished. असम्बली में नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान। ज़राए ने बताया तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स पर रिलीफ मिलने की तवक्को है। मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे, शैम्पू, साबुन सस्ते होने का इम्कान है। टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए की तवक्को। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 1,727 अरब रुपए जमा होगा। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। को थाम लीजिए, आज बजट पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट के कई आदाद शुमार सामने आ गए। हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान। ज़राए ने बताया तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स पर रिलीफ मिलने की तवक्को। सालाना 12 से 36 लाख तनख्वाह वालों पर टैक्स में कमी का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में रद्दोबदल की भी तजवीज़ है। टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 किए जाने की तैयारी की गई है। बजट में सुपर टैक्स में कमी हो सकती है। कारपोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। सालाना 1 करोड़ या इससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म हो सकता है। बताया बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी, पाउडर, मस्कारे, शैम्पू, साबुन सस्ते होने का इम्कान। नए माली साल में टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए की तवक्को। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 1727 अरब रुपए जमा करने का हदफ होगा। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगने का इम्कान। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मुतालिक नए टैक्स इक़दामात की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर हुकूमत कैपिटल गेन टैक्स के दायरा कार को वसी करने पर गौर कर रही है। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत डिजिटल ट्रेडिंग से हासिल मुनाफे पर टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक टैक्स आयद किए जाने की तजवीज़ है। क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स कानून में ज़रूरी तरमीम भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल असासों के सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श करार। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया 22 में से 16 सनती शोबों में मस्बत तरक्की रही। फ़ीकस आमदनी $1,902 हो गई। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2026 में GDP ग्रोथ 3.7% रही। फ़ीकस आमदनी $1,901 हो गई। एग्रीकल्चर साल 2.89% की ग्रोथ हुई। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की। पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह। मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ। फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एफडीआर के महसूलात की मैं बात करना चाहूँगा। 10.1% इजाफा हुआ है। 1,75,000 नए इन्वेस्टर्स आए हैं इन इक्विटी मार्केट। 39,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। ये जिक्र होता है कि कुछ कंपनियां इस मुल्क को छोड़कर गई हैं, ये भी बात दुरुस्त है। मुल्क में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा। 29% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। 2018-19 के बाद गुर्बत तेज़ी से बढ़ी। इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि गुर्बत की शरह 28.9% तक पहुँच गई है। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% तक पहुँच गई। शहरी इलाकों में ये शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। सूबों में सबसे ज़्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई। सिंध में शरह 32.6%, KP में 35.3% और पंजाब में 23.3% रही। मुल्क में अमीर और गरीब की आमदन में फ़र्क 28 से बढ़कर 33% हो गया। PTI का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। हमने आज असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि हम आइंदा का फैसला करेंगे कि इस पार्लियामान में हम क्या रोल अदा करेंगे। आज मुतफिका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया इस बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालिबा करेंगे।
ये मुतालबा हम हर रोज की बुनियाद पे करेंगे। अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, लेकिन ऐवान को डिस्टर्ब न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को मशवरा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत भी जेलों में कैद रही है। हमने कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ऐवान का तक़द्दुस पामाल नहीं किया। पार्टी की लीडरशिप कैद में रही, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भी कैद में रहे, लेकिन हमने इस हाउस उसको दाव पे नहीं लगा। वो अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पे जरूर लड़ते रहे, एहतजाज करते रहे, लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी को अगर वो डैमेज करेंगे तो नुकसान हम सब का हो। बजट से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात रीशेड्यूल। अहम मुलाकात आज सुबह 10:30 बजे वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में होगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे बताइएगा। जी बिल्कुल, बजट से पहले MQM पाकिस्तान के मुतालबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात आज सुबह 10:30 बजे इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। मुलाकात में MQM की जानिब से बजट तजावीज़, बलदियाती हुकूमतों पर MQM का आईनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से अहम बातचीत की जाएगी। MQM के ज़राए के मुताबिक 140A के अमल दरामद और इसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाएगा, जबकि MQM जो है वो बजट की मंजूरी से पहले सिंध की गवर्नरशिप जो है वो हासिल करने के लिए भी जोर डालेगी और MQM की जानिब से कामन तिसौरी को दोबारा गवर्नरशिप की बहाली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात की जाएगी। MQM का ये मौक़िफ़ है कि सिंध की गवर्नरशिप उनकी रेड लाइन है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म बजट से पहले फैसला करें। इसके अलावा कराची और हैदराबाद के लिए स्पेशल तरक्याती पैकेज की मंजूरी के हवाले से भी बात होगी और NFC से बराह रास्त कराची को 300 अरब दिए जाएं इस और जो कराची के शहरी हैं उनकी महरूमियों को दूर किया जाए, इस पर भी MQM अपना मौक़िफ़ रखेगी। MQM ज़राए का ये कहना है कि बजट की मंजूरी और आइंदा MQM क्या हिकमत अमली बनाएगी, ये वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद MQM अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएगी, जिसके बाद मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि बजट की मंजूरी के लिए हिमायत की जाए या नहीं। तो आज सुबह जो है ये मुलाकात रीशेड्यूल हुई है। ये मुलाकात आज होनी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बाइस इसको रीशेड्यूल किया गया है और आज ये सुबह 10:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।